السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بہت بہترین ہوں گے۔ آج کلاس 10th اردو سبجیکٹ چیپٹر 2 کا بھابھی جان کا بہت امپورٹنٹ سوال لے کر آیا ہوں، جو سبھی سوال آپ کے ایگزام کے لیے ہے۔ یہ سوال کافی بہترین ہے، جو سب پوچھے ہوئے سوال ہے، یعنی PYQ سوال ہے۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ سوال کی طرف۔ اس سوال میں ہم لوگ دیکھیں گے کل 25 سوال ہوگا، اور سوال کے بعد ایک چھوٹا سا PDF بھی اسی ویڈیو میں ڈالا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ سوال بہت ہی بہترین لاجواب ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ مصنف کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ آپ کے لیے اس سے بہتر ویڈیو لا سکوں اور آپ سب سے پہلے دیکھیں۔ آج ہم لوگ جانیں گے چیپٹر 2 سہیل عظیم آبادی کے بارے میں۔ آپ کو بتا دیں کہ بہار بورڈ میں مصنف سے کافی سوال آتے ہیں، جس میں مصنف کے زندگی کے بارے میں آپ کو لکھنا بھی پڑتا ہے، سبجیکٹیو میں بھی آتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم لوگ جانتے ہیں مصنف کے بارے میں۔ تو جانتے ہیں سہیل عظیم آبادی، جن کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ کیا ہے ان کا اصلی نام؟ سید مجیب الرحمن ان کا اصلی نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ تو ان کا تخلص کیا ہے؟ سہیل، یعنی نام کے پہلے جو لگتا ہے اسے ہم لوگ تخلص کہتے ہیں۔ اس طرح ادبی دنیا میں ان کا پورا نام کیا ہو گیا؟ سہیل عظیم آبادی ہو گیا۔ اس نام سے یہ مشہور ہو گئے، مشہور بولے تو فیمس ہو گئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ اپنے کاپی میں نوٹ کیجئے۔ اس طرح سے سوال آپ کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ آبجیکٹیو میں آئے گا کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں ہوئی۔ کہاں ہوئی تھی؟ 11 میں پٹنہ میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ 11 میں پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تھے۔ ان کے خاندان کیا تھا؟ زمیندار خاندان تھا۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ 1 سال کے تھے تو ان کی ماں کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ ان کی ماں، والدہ مطلب ماں کا انتقال ہو گیا 1 سال کی عمر میں۔ پرورش ان کی کہاں ہوئی؟ ننیہال میں ان کی پرورش ہوئی۔ یہ سب آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں تو آپ اپنے کاپی میں نوٹ بک کرتے رہیے، اتاریے، ویڈیو کو پاز کر کے دیکھیے، پھر اتاری لیجیے، پورا ویڈیو دیکھیے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ سوال کس طرح کا پوچھا جاتا ہے، کون سوال امپورٹنٹ ہے، کس طرح سے بنے گا۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہی ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ایک معلم یعنی ایک عالم سے انہوں نے کیا کی؟ شروع کی پڑھائی چالو کی۔ ویسے ان کی آبائی وطن شاہپور بھدول ہے، یعنی کہ ان کا گھرانہ کہاں ہے؟ پہلے یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ شاہپور میں رہتے تھے، جو کہاں پڑتا ہے؟ پٹنہ ضلع میں پڑتا ہے۔ یہ کہاں رہتے تھے؟ ان کا پورا پریوار کہاں رہتا تھا؟ شاہپور میں رہتا تھا۔ شاہپور کہاں ہے؟ پٹنہ ضلع ہے۔ تو پٹنہ کہاں ہے؟ بہار میں۔ افتاد طبیعہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی حالات ٹھیک نہیں تھی، جس کے کارن اچھی پڑھائی نہیں ہوئی۔ گرجے مظفر پور، حیدرآباد، کولکتہ عالمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدائی شاعری کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگار کی طرف مائل ہوئے۔ شروع میں شاعری کریے، پھر بعد میں کیا؟ افسانہ کی طرف آ گئے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانہ لکھے، یعنی کہ انہوں نے شروع میں کیا کی؟ شاعری کی، پھر بعد میں افسانہ لکھنے لگے۔ آگے سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو کی کیا کی ہے؟ ملازمت اختیار کی، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا۔
याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा और देखिएगा कि कौन कौन से सवाल टकरा रहे हैं। आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी एक सेकेंड स्किप नहीं करिएगा। इस मुलाजमत के सिलसिले में वह दिल्ली में रहे, फिर उनकी तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गई। यानी पहले ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे तो दिल्ली में थे, फिर बाद में दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पहुँच गए, श्रीनगर कश्मीर। फिर वापस कहाँ चले आए, पटना चले आए। मुलाजमत इस्तीफ़ा दे दिए, यानी इनको अपनी नौकरी को क्या किए, छोड़ दिए। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, मसरूफ़ मतलब बिजी रहे। रिसाला निकाले और एक रोज़ नामा अखबार, इनका एक अखबार भी निकला जिस अखबार का नाम क्या है, साथी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनके अखबार का नाम साथी है, कई बार पूछा गया है, VVI है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सुहेल अजीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरावी वशात में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवी अशात का काम किया, यानी 5 या 7 साल तक काम किया उर्दू पर। ये जमींदार क्या थे, जमींदार राना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर क्याम उनके अफसाना की मजमूआत मुतय्यन कर दिए। उनके अक्षर व बिस्तर अफसाना ज़मींदारों के इस्तेहाल से, यानी ज़्यादातर उनका अफसाना किस पे छपी हुई है, ज़मींदार पर है, के खिलाफ मजदूरों और कमज़ोर तबकों के हकूक़ जैसे मुआज़ुमात से ताल्लुक़ है। यानी उनके ज़्यादातर अफसाना जो छपी है, कहानी जो छपी है, वो ज़मींदार से जुड़ी हुई और मज़दूरों से जुड़ी हुई छपी हुई है। सुहेल अजीम आबादी तख्लीक़ात में उनकी 3 अफसाने मजमूए छपी, यानी शुरू में उनके 3 अफसाना जो छपा वो काफ़ी क्या था, चर्चित रहा। वो अफसाना कौन कौन सा है, एक 4 चेहरे। ये आपको एग्जाम में अनलिमिटेड टाइम्स पूछा गया है कि 4 चेहरे के मुसन्निफ कौन है। अलाउ और आदमी के रूप, ये 3 है जो है उनका अफसाना काफ़ी फेमस है। एक नावल भी है बेजर के पौधे, किसके द्वारा लिखी गई है बेजर के पौधे, तो सुहेल अजीम आबादी के। इनके मजमुआ के अलावा सुहेल अफसाना के तादाद 125 तक है। इन्होंने कितने अफसाना लिखे हैं, 125। 1980 में इनका इंतकाल हो गया। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये सभी बात जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, 20 सवाल इसी पर हम देखेंगे और इसके एंड में कुछ PDF वगैरह भी हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। आपका पहला सवाल, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। तो जस्ट हम अभी आपको बताए हैं, देखिए इसमें कि क्या बताएं आपको। देखिए यहाँ पर सुहेल अजीम आबादी का असल नाम मैंने आपको बताया है कि क्या है उनका असल नाम। तो देखिए इनका असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सैयद मुजीबुर रहमान इनका असल नाम है। ठीक है, यह है सैयद मुजीबुर रहमान। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर, तो इसका आंसर एकदम आसानी से आप लोग टिक लगा लीजिएगा, एकदम धीरे से। सैयद मुजीबुर रहमान इनका क्या है, असल नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट हम अभी आपको बताए हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सुहेल की पैदाइश कब हुई। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, ये सब पूछा हुआ सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में काफ़ी मर्तबा आपको क्या किया गया है, ये सवाल पूछा गया है कि सुहेल की पैदाइश कब हुई। तो सुहेल की पैदाइश कब हुई, 1911 ईस्वी में हुई थी। 1911 ईस्वी में कहाँ हुई थी, उनका वतन पटना में है। 11 ईस्वी में पटना जिला में हुई थी। आगे पढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सुहेल ने कौन सा अखबार निकाला। मैंने आपको अभी बताया है कि यह सवाल पूछा हुआ है और देख लीजिए आपके जस्ट सामने है। मैंने भी जितना भी सवाल लिया है वो सारे सवाल पूछे हुए हैं, सब इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सुहेल ने कौन सा अखबार निकाला था, साथी निकाला था। क्या निकाला था, साथी अखबार उन्होंने क्या किया था, निकाला था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सुहेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी आपके किताब में है, कौन सा अफसाना है। तो याद रखिएगा बच्चों, आपकी किताब का जितने भी राइटर का नाम है
उस सभी को याद रखना है, उनकी पैदाइश याद रखना है, उनका क्या करते हैं कि पैदाइश के साथ साथ वफात भी याद रखना है, उन्होंने क्या क्या लिखा है ये याद रखना है। जैसे इस चैप्टर से हम बता देते हैं कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम आपको याद रखना है। क्या है असल नाम? असल नाम आपको याद रखना है, असल नाम। इस चैप्टर से मैंने आपको बताया कि इसका असल नेम याद रखना है। तो असल नेम क्या है बताइए? तो असल नेम इसका क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? सैयद। ये सब हम आपको नोट्स में दे देंगे। मुजीबुर रहमान इनका असल नाम है, ठीक है ना? सैयद मुजीबुर रहमान असल नाम। इनकी पैदाइश याद रखना है, पैदाइश। पैदाइश इनकी याद रखना है कि पैदाइश कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी पैदाइश? तो पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में पैदाइश हुई थी, ठीक है ना? इनकी पैदाइश पटना में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ये सब हम आपको नोट्स में दे देंगे। भाभी जान का ताल्लुक किस नस्र सनफ से है? तो खत से है, ड्रामा से है, अफसाना से है, नावल से। ये आपके किताब में भाभी जान क्या है? अफसाना है। भाभी जान क्या है? पहला अफसाना है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा? तो उर्दू का पहला जो मुख्तसर अफसाना जो था वो आपका कब छपा था? 1905 में छपा, 1903 में, 1906 में या 1907 में? तो मुख्तसर जो अफसाना छपा था उर्दू का वह 1903 में छपा। कब छपा था? 1903 में छपा था मुख्तसर अफसाना। आगे, सुहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था? हम आपको पढ़ाते समय बताए हैं कि तखल्लुस कहते हैं जो नाम के क्या आ जाए, पहले आ जाए। तो तखल्लुस क्या है? तो देखिए तखल्लुस क्या होगा? सुहेल होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है? यानी यह कहाँ पर इनका वतन है? तो आबाई वतन, इसके बाप दादा परदादा कहाँ रहे हैं? तो पटना में रहे। कहाँ इनका आबाई वतन? पटना जिला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन हो गया। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल अजीम आबाई की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? यानी इन्होंने शुरू में कहाँ पढ़ा? तो आपको हम पढ़ाए हैं कि शुरू में जब इनकी माँ का इंतकाल हो गया था, तो वालदा का इंतकाल हो गया, तो ये ननिहाल चलेगा और वहीं पर आगे की पढ़ाई किए। आगे बढ़ते हैं। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? इस पूरे कहानी में अगर देखा जाए तो किरदार में रुकैया भाभी है और अख्तर उनका देवर है। क्या है अख्तर? अख्तर उनका देवर है। भाई भाई जो है ना वो जेल में रहते हैं, ठीक है। आगे, रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम था? तो रुकैया भाभी की जो एक बेटी थी उस बेटी का नाम था रेहाना। क्या नाम था? रेहाना नाम था। क्या नाम था? रेहाना था। जमीला जो नाम है, ये जो जमीला जो नाम है, ये अख्तर इसको पसंद करता था। जमीला को कौन पसंद करता था? अख्तर इससे शादी करना चाहता था। सम्मी कौन थी? पड़ोस की एक लड़की थी। सम्मी कौन थी? सम्मी एक पड़ोस की लड़की थी। कहाँ की लड़की थी? पड़ोस की लड़की थी। पड़ोस की लड़की थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था? तो वो सबसे ज़्यादा रुकैया भाभी पढ़ने का नहीं, सोने का नहीं, घूमने का नहीं, उसको राजनीतिक से बहुत लगाव था, यानी कि सियासत का। खूब राजनीतिक से खूब जुड़े रहते थे, जिसके कारण उनको हमेशा जेल जाना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। चार चेहरे, जस्ट हम आपको बताए हैं चार चेहरे, यह नावल है, आपके किताब का यह नावल है। और इस नावल को सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है। और कब लिखा है? ये क्या है? एक नावल है। क्या है? यह एक नावल है। तो इस नावल को कब लिखा गया है? 1934 में या 1930 में या 1935 में या 1925 में? तो आपको बताया है
यह लिखा कब गया था? नहीं, याद रखिएगा, चार चेहरे कब लिखी गई थी? 1934 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1934 में चार चेहरे लिखी गई। ठीक है ना, ये नावल है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, अफसाना भाभी जान। क्या है सवाल? अफसाना भाभी जान के असल किरदार का नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल सवाल है ये, VVI सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार ये पूछा गया है कि अफसाना भाभी जान का असल किरदार जो थी वो खुद भाभी थी, जिसका नाम क्या था? रुकैया था। भाभी का क्या नाम था? रुकैया था। जमीला कौन थी? जिसको अख्तर चाहता था, अख्तर इससे शादी करना चाहता था। रेहाना कौन थी? रेहाना भाभी की क्या थी? बेटी थी। सम्मी कौन थी? पड़ोस की लड़की थी। क्या? पड़ोस की लड़की थी। पड़ोस की लड़की, पड़ोसी थी। समझे? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में आया, आप इसको ध्यान रखेंगे। भाभी जान किसका अफसाना है, यानी किसने भाभी जान अफसाना को लिखा है? ये आपके किताब का पहला अफसाना है। तो हम आपको बताए हैं कि बाबू, जितने भी चैप्टर से मुसन्निफ है, उनके मुसन्निफ का क्या लिखा गया है, किसके द्वारा क्या लिखा है, किस मुसन्निफ ने क्या लिखा। जैसे हमद खुदाया जुजल, शबनम कमाली, भाभी जान, सुहेल अजीम आबादी। इस तरह आपको याद कर लेना है पूरे राइटर का नाम, उन्होंने क्या लिखा है, उनकी पैदाइश याद कर लेना है, उनकी वफात याद कर लेना है, उन्होंने क्या क्या लिखा है यह याद कर लेना है। यह आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। तो भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान किसने लिखा है? आपको राइटर से सवाल आना तय है, तय है, तय है। इस बात का बेहद आपको ध्यान रखना है कि भाभी जान अफसाना किसने लिखा है। उस तरह से बहुत सारे सवाल आने हैं। तो किसने लिखा है? सुहेल अजीम आबादी ने। किसने लिखा है? सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे? तो याद रखिएगा, हम आपको थ्योरी में भी पढ़ाए हैं कि जस्ट आपको देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि सुहेल अजीम आबादी ने, देखिए यहाँ है, देखिए यहाँ सुहेल अजीम आबादी में कितने लिखे? 125। कितने लिखे हैं? 125 लिखे हैं। सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे हैं? 125 लिखे। आगे बढ़ते हैं। भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया महीना मिलता था? तो याद रखिएगा, भाभी जान को कॉलेज से 400 रुपया महीना मिलता था। कितना महीना मिलता था? 400 रुपया महीना मिलता था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सुहेल कौन सी नौकरी करते थे? तो सुहेल कौन सी नौकरी करते थे? दफाई शाबा नहीं, ऑल इंडिया रेडियो, उस्ताद, प्रोफेसर। तो सुहेल क्या करते थे? ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। पहले दिल्ली में, फिर बाद में इनका तबादला कश्मीर में हो गया। उनके बाद इन्होंने क्या किया? रिटायरमेंट ले लिया। ऑल इंडिया रेडियो से इनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद इन्होंने उर्दू की दुनिया में अपना नाम कमाया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सुहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए? तो बेदी से नहीं, प्रेमचंद्र से, मिंटू से, कोई नहीं। तो सुहेल ने क्या किया था? सुहेल मुतासिर हुए किससे? प्रेमचंद्र से हुए। किससे हुए? प्रेमचंद्र से मुतासिर हुए। आगे सवाल की तरफ। सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? जस्ट आपको थ्योरी में बताएं कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो इनका इंतकाल हुआ था 1980 में। 1980 में इनका इंतकाल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल देखिए, ये नोट्स है, को तो पहले देना चाहिए था, लेकिन इस सेटिंग में मिस्टेक हो गया है। अच्छा कोई नहीं, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे और इसको उतार लेंगे अपने कॉपी में। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम देखिए बाबू, यहाँ है सुहेल अजीम आबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान है। ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1911 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में। इनका वतन कहाँ है? पटना है। इनका अखबार का नाम क्या है? साथी है। इनके 3 अफसाना मजमूए हैं। कौन कौन है? चार चेहरे, अलाउ और आदमी के रूप। ठीक है ना।
इनका ताल्लुक कहाँ से है? बिहार से ताल्लुक है। ताल्लुक कहाँ से है? बिहार से। इनके अफसानवी मजमुआ का नाम चार चेहरे है, जो कब छपी थी चार चेहरे? 1934 में। कब छपी थी? 1934 में। ठीक है ना। चार चेहरे आपकी छपी कब? 1934 में। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 1934 में छपी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, इसमें असली किरदार जो है वह रुकैया है, जिसको हम लोग भाभी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाभी कहते हैं। ठीक है ना। आगे फिर दूसरे किरदार में इसमें नाम है अख्तर का, जो भाभी का वह देवर लगेंगी। क्या लगेंगी? देवर लगेंगी। यहाँ अख्तर है, अख्तर जो क्या लगेंगी? भाभी का देवर लगेंगे। आगे भाभी की एक बेटी है रेहाना। क्या नाम है? रेहाना। भाभी की बेटी है रेहाना। किरदार में जमीला भी है थोड़ा देर के लिए, जो अख्तर की बनने वाली बेगम जो थी, और एक सम्मी नाम की लड़की जो पड़ोस की क्या थी? लड़की थी। ठीक है ना। यही सम्मी जो है रुकैया भाभी की यहाँ जाती है अपने भाई का फीस के लिए, और कह नहीं पाती है, तो भाभी अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाकर उनसे पूछती है कि बताओ क्या मसला है। तो बहुत रोने लगती है। रोने के बाद बताती है कि भाभी, आप तो हमको पढ़ाते ही है, हम नहीं चाहते हैं बोलना, फिर भी बोल रहे हैं कि मेरे भाई का दरमाह का पैसा बाकी है, उसे देना बहुत ज़रूरी है। तो भाभी इस बात को सुनकर उसको शांत करती है और अपनी बेटी के लिए खरीदी गई 2 सोने की चूड़ियाँ उसको देती है, और कहती है कि बाबू सम्मी, तुम इसको बेचकर अपने भाई का महीना फीस जमा कर देना। उसको समझाकर उसको कहती है कि अंधेरा हो जाएगा, इससे पहले तुम क्या करो, चली जाओ। और वह जो 2 चूड़ी थी, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही वह अपनी बेटी के लिए 2 चूड़ी खरीदी थी, और उनकी बेटी जो थी रेहाना, बेटी का नाम क्या है? रेहाना। वह चूड़ी को मात्र कितना दिन पहनी थी? 1 दिन ही पहनी थी, और उस चूड़ी को भाभी जान ने क्या किया? सम्मी को दे दिया कि बेचकर अपने भाई को क्या करना? महीना फीस, एग्जामी फीस भर देना। बताओ कितना मायादार है भाभी। आगे बढ़ते हैं। आज के डेट में ऐसी भाभी नहीं मिलेगी। भाभी कैसी मिलेगी? जो कितना जल्दी से जल्दी आपका घर तोड़ के अलग घर कर। आगे बढ़ते हैं। तो भाभी जान को कॉलेज से 400 रुपये दरमाह मिलता था। यानी कितना महीना मिलता था? कॉलेज से मात्र 400 रुपये दरमाह मिलता था। सोहेल अजीम आबादी के नावल के नाम क्या है? बेजर के पौधे, जो कब छपी थी? 1934 में। यही ना छपी थी? नहीं नहीं, 1934 में नहीं, चार चेहरे 1934 में छपी थी। सॉरी, गलती हो गया। आगे इनके अफसानों की तादाद कितनी है? 125 है। सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? 1980 में हुआ था। इनके खानदान क्या थे? जमींदार थे। खानदान क्या थे? जमींदार थे। सम्मी तो क्या थी? 2 चूड़ियाँ उसके भाई के फीस के लिए दी। सम्मी को कौन दी 2 चूड़ियाँ? भाभी जान दी, जो 2 दिन पहले अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, जो सिर्फ एक बार पहनी थी उसकी बेटी। तो याद रखिएगा, आप इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे, आप इसका ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा सोहेल की पैदाइश पूछी जाएगी, मौत पूछी जाएगी, सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस पूछा जाएगा। तो तखल्लुस में आपको क्या रखना है? तखल्लुस में क्या है? आंसर दीजिएगा। तखल्लुस अगर आपको पूछ ले कि बताइए तखल्लुस क्या है, तखल्लुस क्या है, इसमें लिखने में दिक्कत है, तो तखल्लुस क्या होगा? सोहेल होगा। क्या होगा? सोहेल होगा। तखल्लुस सोहेल होगा। अगर उसकी पैदाइश पूछी जाए तो पैदाइश क्या लिखिएगा? पैदाइश क्या होगी? 1911 उनकी पैदाइश होगी। ठीक है ना। आगे देखिए कि 11 पैदाइश होगी। उनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? इब्तदाई तालीम अगर पूछा जाए कि इब्तदाई तालीम, इस सब आपको हम अभी बताए हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि उनकी इब्तदाई तालीम, इब्तदाई तालीम क्या? इब्तदाई तालीम, इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? नानीहाल। कहाँ हुई थी? नानीहाल। नानी नानीहाल, नानीहाल में हुई थी। ठीक है ना। पूछा जाएगा कि इनका आबाई वतन कहाँ है? तो आबाई वतन इनका पटना है। कहाँ है आबाई वतन?
सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन पूछा जाएगा तो आबाई वतन कहाँ है? आबाई वतन इनका पटना है। क्या है? पटना है। पटना है। ठीक है ना। आगे अगर इनसे पूछा जाए कि कौन सी नौकरी करते थे तो ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करते थे। इन्होंने कौन सा अखबार निकाला तो साथी। इनके अखबार का नाम क्या है? इनके अखबार का नाम है साथी। क्या नाम है? साथी नाम है इनके अखबार का। आगे सुहेल अजीम आबादी के कितने अफसानवी है? अफसानवी कितने हैं? 125 अफसाने। कितने हैं? 125 अफसाने हैं। ठीक है ना। 125 अफसाने हैं। ठीक है। इनका इंतकाल कब हुआ था? इंतकाल 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 हुआ था इनका 1980 में। हुआ था इनका इंतकाल। इनका इंतकाल हुआ था 1980 में हुआ था। ठीक है। ये सब आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। इनके पहले अफसाना है कौन? पहला अफसाना बताइए। 3 अफसाना इनका फेमस हुआ था और पहले अफसाना का नाम बताइए। आप लोग कमेंट में बताइए कि इनके पहले अफसाना कौन है। पहले अफसाने का नाम क्या है? 4 चेहरे। 4 चेहरे। 4 चेहरे। ठीक है ना। भाभी जान किस अफसाना का है? तो इसी का है, सुहेल का है। नहीं, इससे आपको पूछा जाएगा कि सुहेल की उम्र कितनी थी जब इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। आपको हम पढ़ाएं थ्योरी में कि सुहेल की उम्र कितनी थी। सुहेल की उम्र कितनी थी? उम्र कितनी थी? कितनी थी कि इनके क्या हो गया था? इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। वालदा का इंतकाल। वालदा का कितनी उम्र थी इनकी? 1 साल। कितनी थी? 1 साल। मात्र 1 साल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगला सवाल में, अगला तीसरा चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुश आमदीद।